پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی بحالی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی. الیکشن کمیشن کی 2 رکنی بینچ بنا کر اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا. عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری روز. این اے 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا. این اے 127 لاہور سے بلاول بھٹو اور این اے 149 ملتان سے جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات پر فیصلہ آج سنایا جائے گا. میاں والی این اے 89 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا. مریم نواز کے لاہور اور سرگودا کے حلقوں پر کاغذات نامزدگی منظور. این اے 71 سیالکوٹ پر عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی مسترد. کاغذات نامزدگی سوشل سیکورٹی واجبات کی عدم ادائیگی اور اثاثے ظاہر نہ کرنے پر مسترد کیے گئے. شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانوں کے کاغذات نامزدگی پر غلط دستاویزات جمع کرانے کا اعتراض دائر. پی پی 150 لاہور سے پی ٹی آئی کی امیدوار صنم جاوید کے وکیل نے اعتراضات پر تحریری جواب جمع کرا دیا. صنم جاوید کے وکیل نے کہا شکایت کنندہ آر او کے سامنے پیش نہیں ہوا. ڈی سی لاہور سے اجازت لے کر کاغذات کی تصدیق کروائی گئی. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کے این اے 50 پر کاغذات نامزدگی مسترد. تاحیات نااہلی کے باعث این اے 209 سانگھڑ پر جی ڈی اے کے امیدوار محمد خان جنیجو کے کاغذات نامزدگی مسترد. پانچ سال کے دوران بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے کا اضافہ ہوا. بانی پی ٹی آئی نے این اے 122 میں کاغذات نامزدگی کے ساتھ تفصیلات جمع کروا دی. دستاویز کے مطابق 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی، جو 2023 میں 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار سے زائد ہو گئی. لاہور کا گھر وراثت اور بنی کالا میں 300 کنال اراضی تحفے میں دی گئی. مسلم لیگ نون نے شیخوپورہ میں پنڈال سجا لیا. صدر نون لیگ شہباز شریف خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں خود کو چکوال کی عظیم کہلوانے والی شخصیت سہولت کاری کی قیادت کر رہی ہے. وہ چاہتے ہیں انتخابات کو متنازع بنا کر ایسا ماحول بنایا جائے جس سے 9-10 مئی کی تاریخ کو دہرایا جائے. انتخابات کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے، مگر ایک سوچ چاہتی ہے پاکستان کو اس دلدل میں رکھا جائے. کی خواہشات پر فیصلے نہیں ہو سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے اور نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نواز شریف گم سم گھوم رہے ہیں کہ مجھے واپس کیوں بلایا. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنی کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، سب کو مساوی مواقع ملنے چاہیے. جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ان پر دباؤ کی مذمت کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایم پی او کا آرٹیکل 32 آئین کے آرٹیکل 10(4) سے متصادم ہے. کسی کو محض اس بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ عمل کر سکتا ہے. کسی کی حراست کے احکامات کے لیے ٹھوس شواہد کا ہونا ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 ایم پی او کے خلاف درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس بابر ستار نے لکھا چیف کمشنر اسلام آباد کا صوبائی اختیارات سے متعلق نوٹیفیکیشن آئین کے متصادم ہے. اسلام آباد میں فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جا سکتا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 5 ماہ میں 67 ایم پی او آرڈر جاری کیے، جن میں سے اکثریت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا ممبران کے خلاف تھے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آرڈر کی سپورٹ میں کوئی میٹیریل پیش نہیں کر سکے. انہوں نے آئین و قانون کے ساتھ فراڈ کیا. جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اختیار استعمال کیا وہ بدنیتی کے زمرے میں بھی آتا ہے. سڑک کے لیے زمین کی خریداری میں خرد برد کا کیس. وبا چودھری کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. احتساب عدالت کی نیب کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت. وبا چودھری نے عدالت میں کہا
एक्निक ने सड़क की मंजूरी दी। मंजूर शुदा मनसूबे की फिजिबिलिटी खोलना नैब का इख्तियार नहीं। क्या मैं अकबर बादशाह हूं कि सब पर असरअंदाज हो गया? वकील फैसल चौधरी ने कहा, इंक्वायरी के स्टेज पर गिरफ्तारी फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पुलिस ने उमर डार को डिफेंस लाहौर से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। अदालत उमर डार को बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को गुज़श्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमर डार सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। सियासी मुखालिफों की दरख्वास्त पर आज ही के दिन 2020 में नैब ने मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मैं 6 माह कैद में रहा। अल्लाह ने हिम्मत दी। नैब ने इंक्वायरी बंद करते हुए मुझे बेगुनाह करार दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, मुझ पर पीटीआई काबीना ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कराई, जिसकी सजा मौत है। जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उनको याद दिलाना जरूरी हो जाता है। फैज चला गया, अब क्या करेगा? साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सवाल। आप तो है ना? संजरानी का जवाब, जिस पर आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मैं तो हूँ, मेरे साथ तू करता रहा यूं यूं यूं। सियासत में सो जाकर हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजरानी के दरमियान दिलचस्प मकालमा फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। बिलावल प्रोजेक्ट फेल हो गया, वजीर आजम नहीं बन सकते। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के वक्त कराची आती है, शहर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। जमात इस्लामी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। अवाम मुश्किलात का शिकार है। बिलावल भुट्टो टारगेटेड सब्सिडी पर फोकस करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बानी पीटीआई ने घरों और नौकरियों का दावा किया, वो सिर्फ दावा था। बिलावल भुट्टो ने 30 लाख घर बनाने का कहा। हम घर बना रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। किडनी हिल में पहला म्यूनिसिपल सोलर पार्क बना दिया है। जब मेयर, वजीर आला और वजीर आजम हमारा होगा तो तीनों काम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। कमांडर राहजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक। मुख्तलिफ नौइयत का असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, फत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन को सराहा। किसान को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन कल के कन्वेंशन के बाद लगता है हमारे मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान फार्मर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हाशिम डोगर कहते हैं, आर्मी चीफ के खिताब से किसान मुतमईन है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, हमारे मसाइल हल करने के वादे पहले भी हुए, पहली बार उम्मीद हो चली है कि वादे पूरे होंगे। सदर किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से अपील की, जिस तरह डॉलर माफिया को कंट्रोल किया, ऐसे ही ज़राअत में मौजूद माफिया को भी कंट्रोल किया जाए। नेगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। कहा, 12% काम मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीद है एफडब्ल्यूओ अगस्त तक रिंग रोड पर काम मुकम्मल कर लेगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। साले 9 की आमद। कमिश्नर कराची ने 1 जनवरी तक दफा 144 नाफज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी। पंजाब में भी न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात। आईजी पंजाब का कहना है, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर की चूंग शादाब कॉलोनी में आग लगने से 3 अफराद की मौत। मुकदमा मकान मालिक के बेटे वकार हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज कर दिया गया। मुद्दई का कहना है, नामालूम अफराद ने मेरे घर में आग लगाकर वालिदैन और बहन को कत्ल किया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान भी जल गया।
पंजाब में शदीद धुंध, लाहौर और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख, 4 रोज में 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें उड़ान न भर सकी। मुतादिद ताखीर का शिकार, दुबई से आने वाली परवाज सियालकोट में लैंड न कर सकी, वापस दुबई चली गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, दीर, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और पारा चनार में सर्दी की शदीद लहर। कालाम का दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्रुरी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। हिमायत में सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। चीन और रूस रायशुमारी के वक्त इजलास से गैर हाजिर रहे। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्रुरी के मुतालबे की हिमायत। भारतीय रियासत बिहार में मुसाफिर तैयारा पुल के नीचे फंस गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्क्रैप हवाई जहाज को मुंबई से आसाम ले जाया जा रहा था। मकामी ट्रक ड्राइवरों और रिहायशियों की मदद से जहाज के हिस्से को निकाला गया। इलीगल चीज जिस तरह भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सदेबाब होता है। रिटेलिएशन हम भी कर सकते थे। जितना भी हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशन और इलीगल है। 2 मिनट नहीं लगाएंगे और हम इस पे बैन लगा देंगे और फिर हम पता नहीं 8-10 साल पे चले जाएंगे। निगरां वजीर आजम की जानिब से एडहॉक सदर PHF की तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान हॉकी पर बैनुल अक़वामी पाबंदी की तलवार लटकने लगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, निगरां वजीर आजम का इक़दाम गैर आईनी है। पाबंदी लगने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का DRS टेक्नोलॉजी का मामला ICC मीटिंग में उठाने पर गौर। ICC की गवर्निंग बॉडी के सामने ये नुक्ता उठाया जाए या नहीं, PCB मखमसे का शिकार। मेलबर्न टेस्ट में 3rd एम्पायर की जानिब से रिजवान को आउट करार दिया गया। गेंद बल्ले पर लगी, ना ही ग्लव्स पर, लेकिन एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने आउट दे दिया। डायरेक्टर कमेटी मोहम्मद हफीज ने भी मेलबर्न टेस्ट में एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी के मयार पर सवाल उठाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी कैंप का दूसरा रोज। लाहौर में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात की जेर निगरानी 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। आजम खान, हसीबुल्ला, उमैर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, मोहम्मद आमिर खान और मोहम्मद इमरान ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। और सऊदी प्रो लीग में टेबल टॉपर अल हिलाल की एक और जबरदस्त कामयाबी। अल फीहा के खिलाफ 2-0 से फतह समेट ली। दोनों गोल आखिरी 10 मिनट में स्कोर हुए। अली और मिट्रोविच ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।